Hello students, how are you? Today we start your important portion of the math is the geometry. Okay, normally geometry that means the measure of the land, that means right. हम जानते हैं इजिप्शियन से बेबीलोन, बेबीलोन से ग्रीस और ग्रीस से इंडिया है. ओके, तो आज हम उस टॉपिक के अंदर बात करेंगे बच्चों. चैप्टर नेम इज लाइंस एंड एंगल्स. तो उससे पहले थोड़ा रिवाइज कर ले. वी ऑलरेडी नो दैट अबाउट द defined term and undefined terms, right? So it's very simple to the point, plane, okay, line and space are four undefined terms, right? And other are the defined terms in geometry. For example, line segment, ray, angles, okay, rectangle and the side of all the quadrilaterals, okay, types of those quadrilateral, all the triangles. Normally, okay, they are the defined terms. Okay, so in these chapters we learn about the lines and angles and its properties, right? Very important for the 9th standard. Okay, there are also some kind of the proof are there, so you be ready and attitude, okay, in these lectures. Okay, they all are the definitions. हम लोग आज उसका इंट्रो करेंगे बहुत सारी चीजों का, right? Clear? Okay. So in geometry, normally the simple is a defined terms and undefined terms, right? तो आपको पता चल गया कि defined terms क्या है और undefined terms क्या है. Okay. So let's start our first portion, line and angles. So first सबसे पहले line is a undefined terms. You already know that some kind of the parallel lines and also the intersection. You already know that okay, these two edges, right, of this board. Okay, it is a parallel lines because a line which is not intersect, it is called the parallel lines. Okay, yeah, no common intersection points. Intersecting line, a line which is parallel, not parallel, is intersecting. A line is touched the one and only one point. It is called the intersecting lines. Okay, so this is the symbol of the parallel lines, right? Okay. And this is the perpendicular line symbol, right? Okay, so intersecting line जैसे बच्चों ये आपने लाइन बताई वो क्या है, पैरेलल लाइन है. ओके, ऐसे में कोई भी लाइन बता दो ऐसे तो इट इज द इंटरसेक्टिंग लाइन. अंडरस्टैंड? दिस इज आवर बेसिक कंसेप्ट. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ दैट इज द फर्स्ट टर्म्स इज ओके हियर द line segment. Okay, which is the line segment. So simple line segment, that means what are line segment? So a part, okay, a part or portion of a line, okay, with two endpoints with two endpoints is called, okay, is called line segment, right? Okay, a part or the portions of a line with the two endpoints, okay, two endpoints is called the line segment, right? Okay, so it is denoted by symbolically, it is denoted by line segment AB, right? Understand this? Line segment AB. Okay, for example, right, this one is line, this point A and this point B, students, right? So these portions, they have the two end points, right? A line का ऐसा portion, okay, जिसके two end points है, it is called the line segment. Understand? So it's very easy. What is the line segment? Okay, a part or a portion of the line, okay, which have with the two endpoints is called the line segment. Generally आप लिख सकते हो line segment AB भी लिख सकते हो या फिर symbolically line segment AB ऐसा भी लिख सकते हो. You represent this. So clear? Okay, this is the line segment. So this is the defined terms, right? Okay. Then after the ray.
ओके रे। तो बताओ रे दैट मीन्स द अ पार्ट और पोर्शन। ओके अगेन सो अ पार्ट or portion of a line with one end point, one end point is called a ray. So, right, is called a ray. Understand? ओके तो वेरी इजी। ओके आप सोचो सन में से लाइट आती है तो इनिशियल पॉइंट एक होता है एंड एंड पॉइंट एक ही होता है, तो जहां से प्रोड्यूस होता है ओके उसका इनिशियल पॉइंट हुआ और वहीं से वो जाता है, राइट। तो रे उसका एक ही एंड पॉइंट होता है। ओके तो जनरली इट इज डिनोटेड बाय ओके सो इट इज बच्चों डिनोटेड बाय क्या कहते हैं बच्चों हम लोग, डिनोटेड बाय ए बी रे। सो इट इज से रे ए बी। तो देखो एक एंड पॉइंट है ये वाला, ओके दूसरी तरफ नहीं है, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, राइट। इट इज डिनोटेड बाय ए, राइट। तो देखो यहां से ऐसे, तो इसका इनिशियल पॉइंट है, एक ही एंड पॉइंट हुआ, दिस इज ए एंड दिस वन इज बी, गॉट इट। सो इट इज कॉल्ड द रे ए बी, only one end points. So understand clear students? Okay, now the collinear points and non-collinear points. अब जो टॉपिक्स है वो तो आप जानते हो कि सिंपल है, if the three or more points lie on the same line, okay, points lie on the same line, okay, it's very simple, same line, आप समझ रहे हो, okay, they are called the collinear. ओके अगर लाइन नहीं है बहुत है, ओके अदरवाइज दे आर कॉल्ड द नॉन कोलिनियर्स, राइट। ओके तो चलो हम लोग देख लेते हैं इसमें भी क्या है। सो कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स, ओके चलो चेक कर लेते हैं। तो इफ 3 or more points lie on the same line, right, lie on the same line, okay, so they are called collinear points. They are called otherwise they are called, okay, they are called non collinear points, राइट बच्चों, राइट। तो आप सोचो एक ही लाइन में है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लाइन बनाई जिसमें ए पॉइंट लिया है, बी पॉइंट लिया है, सी लिया है, ई लिया है, राइट। सो दिस ऑल पॉइंट्स आर द कोलिनियर पॉइंट्स, क्योंकि वो सारे एक ही पॉइंट एक ही लाइन पे है, समझ में आ गया, राइट। ओके अब कोलिनियर दैट मीन्स तो यहाँ पे ए है, फिर ए बी है, ए सी है और ए डी है। तो मैं अगर ऐसा है तो देखो, और ए बी हो गया, सी हो गया, ए डी हो गया, ए तो ऊपर है, लाइन के ऊपर नहीं है, तो ए जो दिख रहा है आपको वो नॉन कोलिनियर है, क्या है, नॉन कोलिनियर हो गया, राइट। सो ए बी सी एंड डी आर द नॉन कोलिनियर पॉइंट, अंडरस्टैंड, ओके। तो बहुत सीधी बात है, इफ द 3 or more points are the lying on the same line, it is called the collinear, otherwise they are non collinear points। चलो क्लियर, बेसिक कंसेप्ट इसका क्लियर हो गया, राइट, ओके, अंडरस्टैंड दिस, राइट। चलो अब जाते हैं मेन लाइंस के लिए, हमने सब समझ लिया, राइट। अब देखते हैं बच्चों एंगल्स, राइट। तो एंगल्स समझना बहुत जरूरी है, तो लेट्स स्टार्ट। चलो एंगल पे चलते हैं। अब यहाँ पे
फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ एंगल, सिंपल क्या है बताओ, पता है? एंगल इज नॉर्मली एंगल क्या है? तो एन एंगल इज एन एंगल is union of two non-collinear ray. ओके बस इतने में बहुत कुछ आ गया। और एक पॉइंट है, एन एंगल इज अ यूनियन ऑफ टू non-collinear ray. ओके समझ में आ गया? फिर से non-collinear ray with, क्या रखना है बच्चों? with a common initial point, राइट? तो एंगल किसको कहते हैं बच्चों? यूनियन ऑफ टू रे विच आर नॉन कोलिनियर, राइट? नॉन कोलिनियर रे एंड विथ वन इनिशियल कॉमन पॉइंट या कॉमन इनिशियल पॉइंट, जिसका स्टार्टिंग क्या है? अगर जो बच्चों एबीसीडी बचे कोलिनियर रे है तो ऐसे आएगा, राइट? नॉन कोलिनियर है तो ऐसे, ओके? तो तब जाके आपका एंगल्स बनता है नॉर्मली। तो जस्ट सी दैट, ओके? सो दिस वन एक इनिशियल पॉइंट हो गया बच्चों, इसको मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ, दिस वन इज ए, ओके? एंड दिस वन इज, सॉरी यहाँ पे सी लिख देता हूँ, और कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? अंडरस्टैंड दिस? ओके, तो एक चीज होगी आपकी एंगल। अब देखते हैं और एक पॉइंट्स, देखो तो AC और आपको BC क्या दिख रहा है? AC और AB, राइट? तो रे AB और रे AC से टू रे का यूनियन होके एंगल बना, तो उस एंगल को आप डिनोट करते हैं एंगल, ओके? तो इट इज डिनोटेड बाय, सबसे पहले तो, ओके? सो सबसे पहले इट इज denoted by, okay, normally angle CAB or angle BAC, right? Sometimes you written has only angle है, बट कभी कभी और दो रे इनपुट हो जाता है इंटीरियर दिस पोर्शन, ओके? तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि एंगल के 3 पार्ट्स हो गए, 2 पार्ट्स हो गए, इसीलिए। तो आप जनरली ऐसे CAB भी लिख सकते हो और BAC भी लिख सकते हो, अंडरस्टैंड? तो एंगल को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ओके? तो व्हाट इज एंगल? तो सीधी बात है, यूनियन ऑफ द टू एंगल्स, यूनियन ऑफ द टू नॉन कोलिनियर रे विथ अ कॉमन इनिशियल पॉइंट, राइट? इट इज कॉल्ड द एंगल्स, ओके? तो और क्या चीज है इसमें? ओके, द टू रे फॉर्मिंग एन एंगल, ओके? द टू rays forming, okay, the two rays forming an angle R, or two rays forming the n angles, okay, an angle R, okay, are called the, okay, are called the, क्या आप कहते थे? आर कॉल्ड द आर्म्स, क्या कहते हैं बच्चों हम लोग? आर्म्स ऑफ एन एंगल, राइट? समझ में आ गया? ओके, चलो आगे देखते हैं। एंड, ओके, ओके, एंड the common initial point is called a vertex, राइट? बस ये चीज आपको याद रखनी है, राइट? चलो क्या हुआ बच्चों? एन एंगल इज अ यूनियन ऑफ द टू नॉन कोलिनियर रेज विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट्स, राइट? ओके, तो देखो दो कॉमन है, एक इनिशियल पॉइंट हो गया, टू नॉन कोलिनियर रेज हो गए, आपका एंगल बन गया। इट इज डिनोटेड बाय द CAB या BAC, ऐसे क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ले सकते हो, राइट? थोड़ा ध्यान रखना लिखने में बस। ओके, द टू
ray forming the angles. Okay, two ray forming the angles are called the क्या बोलते हैं arms of an angles, and this common initial point is called the vertex. तो याद रखना है क्योंकि वर्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब भी डिनोट करोगे आगे थियरम में तो ये आपको हेल्प करेगा, ओके, समझने में कंफ्यूजन नहीं होगा. इज कॉल्ड द वर्टेक्स. सो क्लियर. ओके, अब देखो कि ये बॉर्ड बच्चों ये प्लेन है. क्या है? प्लेन. तो जैसे कि प्लेन का ए एंगल्स कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 3 पोर्शन में डिवाइड करता है, राइट. तो कोई भी एंगल्स आपको जो दिख रहा है समझो कि ए, राइट, मैंने बताया. तो कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में. ओके, तो दिस पार्ट्स ऐसे, ओके, इसको क्या कहा जाता है? इंटीरियर ऑफ एंगल, इंटीरियर ऑफ एन एंगल, राइट, इंटीरियर पोर्शन ऑफ द एन एंगल. ओके, तो ये जो बाहरी पार्ट्स है ना बच्चों, ये वाला खाली सिंपल एरो से मैंने बताया है, राइट. इट इज कॉल्ड द, ओके, एक्सटीरियर पार्ट, ओके, या पोर्शन, एक्सटीरियर पोर्शन है. ओके, तो देखो ये पूरा प्लेन को ए एंगल, एक इंटीरियर पोर्शन में, एक एक्सटीरियर, एंड एक जो है दिस. ओके, द थर्ड पार्ट इज द फर्स्ट इज अ, क्या लिखा हमने? ओके, इंटीरियर ऑफ एन एंगल, राइट. सेकंड पार्ट कौन सा आपने डिवाइड कर दिया? तो एक्सटीरियर ऑफ एंगल, एंड थर्ड पार्ट में क्या किया? ऑन द एंगल. क्या कर दिया? थर्ड पार्ट इज ऑन द एंगल्स. ओके, तो जो भी है आपने बीएसी नाम दिया है तो बीएसी उसके अंदर. चलो समझ में आ गया ये 3 चीजें. ओके, अब सबसे पॉइंट इक्वल है, कॉन्ग्रुएंटनेस या इक्वल एंगल्स. तो इक्वल एंगल्स का मतलब क्या पता है कि ट्रेस ऑफ द वन, आपके पास जो भी एंगल्स है तो ट्रेस ऑफ द वन एंगल, ओके, वन एंगल, ओके, टू कवर द सेकंड एंगल्स एग्जैक्टली. ओके, एग्जैक्टली उसको कवर कर देना. ओके, तो उसको आप क्या बोलते हो? इक्वल. ऐसे तो ए वाला है, इसके ऊपर पूरा बैठ जाए तो उसको इक्वल एंगल्स कहा जाता है. क्या कहा जाता है? इक्वल एंगल्स, राइट. चलो अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एंगल्स के अंदर. मेजर ऑफ एन एंगल्स. ओके, तो सबसे बड़ी बात है, चलो लिख देते हैं. तो ओके, और उसके बाद हमारे पास क्या है? मेजर ऑफ एन एंगल. तो हम जानते हैं कि मेजर ऑफ एंगल इज ऑलवेज द रियल नंबर्स और इंटीजर नंबर्स, राइट. आप लिख सकते हो, मतलब इंटीजर तो नहीं पर रियल नंबर्स लिख सकते हो. ओके, अब बिटवीन दिस, ओके, तो डिग्री डिनोटेड बाय एक्चुअल में डिग्री है. ओके, क्या है? डिग्री. तो इसका एक्सियोम्स है मेजर, एक्सियोम. आप जानते हैं ना, एक्सियोम मतलब विदाउट प्रूफ आप उसको एक्सेप्ट करना है. एक्सियोम्स पोस्टुलेट की तरह, राइट, इसकी तरह, पोस्टुलेट की तरह. तो एवरी एंगल हैज अ मेजर. क्या है? सबसे पहले एवरी एंगल हैज मेजर. सबसे पहला पॉइंट आपने एक प्रूव कर दिया. एवरी एंगल हैज अ मेजर. सो द यूनिट ऑफ एंगल मेजर, द यूनिट ऑफ, किसी भी तो मेजर होगा ना, तो द यूनिट ऑफ एंगल मेजर क्या है बच्चों? ओके, द यूनिट ऑफ एंगल मेजर. पता है क्या है एंगल मेजर? स्टैंडर्ड मेजर को हम लोग क्या कहते हैं? तो अब आगे भी पढ़ने वाले नॉर्मली, अभी खाली याद रखना है. ओके, क्या कहते हो आप लोग इसको? इज अ स्टैंडर्ड एंगल. ओके, मेजर इज अ स्टैंडर्ड एंगल is called a degree. Is called a degree, right? Okay, तो याद रखना है, is called the degree. बराबर, सिंपल उसका एग्जाम है. सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मेजर ऑफ
द मेजर ऑफ एन एंगल, जानते हो कितना होता है नॉर्मली? द मेजर ऑफ एन एंगल्स, एंगल्स हम प्रॉपर्टी इसीलिए है, ओके, इन डिग्री इज, इन डिग्री, क्योंकि अब मेजर उसका क्या होगा, इन डिग्री नॉर्मली, राइट, इन डिग्री इज अ रियल नंबर बिटवीन, ओके, रियल नंबर बिटवीन 0 या लाइन, हम लिखते हैं लाइन बिटवीन, लाइन, ओके, लाइन बिटवीन 0 डिग्री, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, ओके, नॉर्मली कोई भी एक्स एंगल्स। तो एक और चीज बराबर है, इंपोर्टेंस मैंने आपको बताई। अब देखो इसके और दो मेजर्स नॉर्मली है जो आपको आगे हेल्प करेंगे आगे के स्टैंडर्ड में। तो क्या है पता है, आप जानते हो कि 1 डिग्री है ना, देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो एक जो डैश दिख रहा है ना वो मिनट का है, क्या है, मिनट, राइट, ऐसा 60 मिनट। एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो आप इसको क्या बोलते हो, सेकंड्स बोलते हो, अंडरस्टैंड? तो एक थोड़ा जब आप आओगे 10th में और उसमें आगे के स्टैंडर्ड में, तब आपको बहुत हेल्प करने वाला है एक चीज। चलो क्लियर, तो आपने मेजर्स भी देख लिए और सब कुछ आपने एक यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, राइट। चलो देन अब जाते हैं मेन चीज, टाइप्स ऑफ एंगल्स पे बच्चों। कहाँ पे जाते हैं अब, द टाइप्स ऑफ एंगल्स, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बराबर है। तो सीधी बात है, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ये पोर्शन। तो लेट्स स्टार्ट। चलो बच्चों, टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ एन एंगल्स। तो फर्स्ट जो है नॉर्मली, अब थोड़े बहुत आपको हिंट मिल गई है, ओके। तो सबसे पहला काम करेंगे RIGHT, राइट एंगल। छोटे स्टैंडर्ड में आप नॉर्मली एंगल्स ट्राइंगल सोचते थे, अब पहले उसका पोर्शन एंगल। तो क्या है बच्चों, एन एंगल, ओके, एन एंगल आपके पास जो है। सो एन एंगल whose measure is, an angle whose measure is 90 degree is called right angle, is called the right angle, right? So this indicating this, exactly, this is the right angle, so this is the right angles, understand? Okay, मान लो this one is B, you denoted A and this one C, okay, so this is the right angle, got it? So what is the right angle बच्चों? Angle whose measure is 90 degree, exactly 90, is called the right angles, okay. Then after, the second angle is the acute angles, okay, acute angle। तो यहां से an angle whose measure, okay, measure is less than 90 degree is called, okay, is called acute angle। तो समझ में आया बच्चों एक्यूट एंगल्स? तो मैं यहाँ पे इसकी फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ओके। तो देखो एक्यूट एंगल ऑलवेज ऐसा आएगा, लेस देन 90, ओके, 90 नॉर्मली ऐसे आता है ना, तो लेस देन 90, सो इट इज द एक्यूट एंगल। फिर जो भी आपको दिख रहा है कि एक एरो थोड़ा, ओके, यहाँ से 90 से थोड़ा नीचे आएगा, सो ओके, सो दिस मेजर इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 90,
जीरो भी नहीं ले सकते हो, 90 भी नहीं ले सकते हो, तो इन बिटवीन हम जितना भी है, राइट, तो दैट मीन्स इट इज द नॉर्मल इज अ एक्यूट एंगल, राइट, समझ में आ गया। तो आप कह सकते हो कि दिस एंगल, मान लो एक्यूट है तो बी, मैं इसको ए लिख देता हूँ बच्चों, इसको सी लिख देता हूँ, सो क्या लिख सकते हो, तो 0 लेस देन एंगल बी ए सी लेस देन 90, आ गया समझ में, क्योंकि ये एक्यूट एंगल है, राइट। चलो आगे देख लेते हैं अब। ओके, एक्यूट एंगल्स अब आ गया। अब इसके बाद जो नॉर्मली आपके पास जो एंगल्स है, ओके बच्चों, तो वो कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल्स, फिर स्ट्रेट एंगल्स। ओके, तो नॉर्मली हम लोग अब इसको फॉलो करेंगे। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं इधर से। Okay, obtuse angle, an angle whose, okay, an angle whose measure is, क्या होगा बच्चों, मोर देन 90, क्या है, मोर देन 90 is called obtuse angle, राइट। तो इसकी नॉर्मली फिगर कैसा है कि बहुत आसान है, ओके, थोड़ा 90 से ज्यादा बाहर, मतलब यहाँ से, राइट। सो आप कह सकते हो दिस इज बी ए एन सी एंगल्स, राइट। तो आप ऐसे भी उसको इंडिकेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, तो दिस एंगल ऑलवेज 90 लेस देन एंगल बी ए सी इज 180। तो ए जो मेजर है वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा, राइट, समझ में आ गया। ओके, तो आपने यहाँ पे देख लिया बच्चों कि अगर एग्जैक्ट 90 है तो इट इज कॉल्ड द राइट एंगल्स, ओके, लेस देन 90 दैट मीन्स द एक्यूट एंगल्स, मोर देन 90 टू 180, ओके, बिटवीन इट इज कॉल्ड द ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, तो एग्जैक्ट 180 है तो आपके दिमाग में आ सकता है कि सर एग्जैक्ट 80 दैट मीन्स द, यस, इट इज कॉल्ड द स्ट्रेट एंगल। ओके, ओके, तो सबसे पहले स्ट्रेट, ओके, स्ट्रेट एंगल, ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंस आपका पोर्शन है कि स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल आपका लिखोगे तो एन एंगल whose measure is 180, कितना है बच्चों, 180, राइट, is called a straight angle, understand, it is called the straight angle। तो कैसा आएगा, यस बच्चों, स्ट्रेट लाइन इज परफेक्ट, राइट। तो आप इसको ऐसे इंडिकेट कर सकते हो, अगर इनिशियल स्ट्रेट लाइन हो गया, क्या हो गया बच्चों, स्ट्रेट लाइन। तो आप इसको ए कह दो, इसको बी कह दो और इसको सी, राइट। तो ये जो पूरा आपको एंगल मिला ना वो 180 हो गया, कितना हो गया, 180, अंडरस्टैंड, क्लियर। तो ये आपका स्ट्रेट एंगल। तो देखो लेस देन 90 एक्यूट, 90 टू 180 ऑब्ट्यूज, एग्जैक्ट 90 राइट एंगल, एग्जैक्ट 180 इज अ स्ट्रेट एंगल। ओके, और कोई हो सकता है, हाँ, तो 180 से लेकर 360 भी हो सकता है, ओके, क्योंकि पूरा सर्कुलर कंप्लीट हो जाए, राइट। तो नॉर्मली आप इसको क्या कहोगे, रिफ्लेक्ट एंगल, क्या कहोगे, रिफ्लेक्स एंगल, बच्चों इसको क्या कहोगे, रिफ्लेक्स एंगल। तो क्या होगा इसका, तो मोर देन 180, तो सिंपल, एन एंगल whose measure is more than 180, क्या है,
मोर देन 180 बच्चों, नॉर्मली हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मोर देन 180, ओके, इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, राइट। तो नॉर्मली ऐसा कैसे हो सकता है, तो बहुत सिंपल है बच्चों, देखो राइट। तो यहां से नहीं, ये पूरा जो है ना ये 180 से ज्यादा, राइट। सो इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एंगल बच्चों, समझ में आ गया क्या हो गया, ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। यहाँ पे इसके लिए कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होना चाहिए क्योंकि 1 डिग्री है। चलो क्लियर, इसको आप सी कह दो, ये पॉइंट ए और ये वर्टेक्स पी, तो हमें ये वर्टेक्स पे मिल रहा है एंगल इसलिए, राइट। तो अब इसके अंदर आप क्या लिख सकते हैं, तो बराबर जो एंगल 180 से ज्यादा और 360 से छोटा हो उसको आप क्या बोलते हो, रिफ्लेक्स एंगल्स बोलते हो। आगे बात समझ में, तो दिस इज द टाइप्स ऑफ एंगल्स जो मेजर के ऊपर डिपेंड है बच्चों, ओके। तो आज जो आपने देखे द टाइप्स ऑफ एंगल्स वो खाली मेजर के ऊपर डिपेंड्स है, ओके। और भी बहुत सारे टाइप्स है एंगल्स के, ओके, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे, ओके। तो आई थिंक आज आपको समझ में आ गया, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल चैप्टर्स। जितना याद रखोगे अभी से इतने, अब पूरी सीरीज शुरू होगी, चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10, ओके। तो जो लाइन और पूरा ज्योमेट्री पोर्शन है, ओके। और अगर 9th में बहुत अच्छा कर लिया तो 10, 11th में आपको बहुत मजा आएगा, ओके। 10th में 2 ही चैप्टर ऐसा है जो डिपेंड्स ऑन 9th स्टैंडर्ड है, लेकिन बहुत सारे बच्चे उसमें मार खा जाते हैं क्योंकि उसको ज्योमेट्री पसंद नहीं है। बट आप ध्यान से देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आ जाएगा, पढ़ते रहो ऐसे ही, okay. Thank you for watching my video, okay. And also please subscribe the channel, okay. YouTube पे जाओ, नेल सर लिखा है, okay. आप उसमें सर्च करो तो पूरे ऐसे चैप्टर्स के आपको सारी थियरम्स प्रूव करके, ओके, जो प्रॉपर्टी हम लोग हर एक प्रॉपर्टी को प्रूव करते हुए थियरम सारे आपको मिलेंगे, जिसको कंसेप्ट क्लियर करना है उसके लिए, ओके। थैंक यू, टिल देन एंड बाय बाय।